Welcome students. How are you? So today we will do preposition with you. Before this we have done parts of speech and today it is our last phase. And I hope you are learning at home nicely. So please give time to English because if you learn grammar at that time your speaking power also increases. So let us come. See here, a preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words. Like this, noun, words. Just as I will say, the book is on the table. The book is one thing, table the other word, and relationship is on. So please see nicely. He is fond of sweets. Sweets word. He is fond and of is preposition. Preposition. Position से पहले. And again here I will explain you the chart. Preposition, it has three phases. First of all, time, when, in, at, since, before, after, for. These type of preposition come, and some are there, they denote the place also. When we will see, when we will do at the time according to sense we will do. Place, where are you going? Place, about, on, at. The book is on the table, again place is there. And direction, into, to. He is going to market. कहाँ? Market. So दिशा है. From, से. He is coming from the market. बाजार से आ रहा है. Say. And of, का. So like this, the chart is there. And one thing is clear to you. Please don't just understand the preposition in Hindi concept. हिंदी से नहीं जांचिएगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे. बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, लेकिन बस ये है कि आपको इसमें मेहनत करनी है. अब लाइक दिस द सेंटेंस, जस्ट एज द प्लेन इज बिलो द क्लाउड्स, बादलों के नीचे है, तो बिलो यहां नीचे की सेंस में आ गया. कई बार हमें सेंस भी देखनी पड़ती है. व्हाट इज द टाइम? बाय योर वॉच. आपकी घड़ी में क्या बजा है? अब देखिए ये preposition है, by your watch. So you cannot say कि मैडम ये कहां से क्या हिंदी लगाऊं, क्या करूं? नहीं. Write in ink, write in ink. So like this some examples are there. He writes with a pen. पेन से लिखता है. But if I say write in ink, that will be a different sense. So practice is very important here. Do practice. But sometimes we can do the exercises. We can do exercises nicely here. Correct use of preposition. कैसे हम प्रयोग करें? कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉमन हैं. यदि हम उन वर्ड्स को याद कर लेते हैं तो काफी हद तक हम preposition सीख सकते हैं. वो हमें जो है अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे. Just as the word at, in. Very important. Both they are. At is used with small town. Small town के लिए है. And in is for big cities, countries. He lives in India, but he lives at Sonipat in Haryana, or he lives at Delhi in India. Before this I had put Delhi in, but when I will put the bigger preposition at that time it will be written like this. He lives at Delhi in India. Because again I had already told you कि हम सेंस को देखेंगे. यहां दिल्ली कम हो गई इंडिया से, तो इंडिया बड़ा तो यहां पर इन आ गया. And in will be also used in the names of month, year. I will say she was born
in April in 1989. So in is here. At is a particular time, just as I will say he came here at 5 o'clock. देखिए टाइम के लिए he came here at 5 o'clock in the evening. अब इवनिंग का कन्वेंस थोड़ा बड़ा है. इवनिंग आपकी 4 बजे से 7 बजे तक चलती है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन जो एक टाइम पर्टिकुलर दिया हुआ है 5 o'clock, ये एक निश्चित समय है. तो यहां हम क्या लगाएंगे? एट. और जो समय बड़ा फैला हुआ है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इन. सो प्लीज जस्ट लर्न ऑल दीज थिंग्स and now see the concept. The second point I have come to here, by with. By is in the passive forms. The book is written by me, मेरे द्वारा. With say instrument. He writes with a pen. पेन के साथ लिखता है. So please try to understand this concept. And the further is on, upon. On is just as I will say resting position. Previously I had given the example. The book is on the table. शांत रखी हुई है किताब, कोई एक्शन नहीं कर रही. बट अपॉन, द कैट स्प्रैंग अपॉन द माउस. बिल्ली ने जस्ट चूहे पर झपट्टा मारा. एक्शन में थी बिल्ली. स्प्रैंग अपॉन, SPRANG. एंड सी हियर द नेक्स्ट इन इनटू. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनटू. इन इज अगेन एक रेस्टिंग पोजीशन है. शी इज इन द रिवर. नदी में है. एंड इफ आई से इनटू, दैट मीन्स द एक्शन. ही जंप्ड इनटू द रिवर. ही जंप्ड इनटू द रिवर. नदी में कूदा. आई पोर्ड द वाटर फ्रॉम द जग इनटू द ग्लास. एक एक्शन आ रहा है. सो दैट विल बी हियर इनटू. सो क्लियर टू यू दिस पॉइंट. इन, इनटू. And since we say for the निश्चित समय के लिए. सन वार बजे जब से. Learn this. He has been living here since 1974. Son. He has been studying since Tuesday. He has been studying since 2 o'clock. 2 बजे से. And for is अनिश्चित समय के लिए. अनिश्चित समय के लिए. जस्ट एज ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours. 2 घंटे से पढ़ रहा है. कौन सा 2 घंटे हैं हम नहीं जानते. सो हियर इट विल बी फॉर. सो नाउ सम आर द वर्ड हियर. अगेन सी बिटवीन एंड अमंग. देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. एंड अमंग, यहां बिटवीन, 2 के बीच में. अमंग बहुत सारे. डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स among the children. And now see some transitive words are there. Transitive words you know very well. The words which have an object, कर्म, सकर्मक क्रिया. They have not preposition. हम preposition use नहीं करेंगे. Like the word order. He ordered 2 cups of coffee. He ordered 2 cups of coffee. No preposition. And see, resemble. The boy resembles the mother. He reached there. He entered there. He asked the question. No preposition. But some are the words. Word is the same. Preposition is different. According to the person. Just as I agree with you. I agree with you. आपसे सहमत हूं. लेकिन I don't agree to your proposal. I don't agree to your proposal. यहां देखिए proposal आ गया. proposal आ गया. agree to आएगा. और पहले with agree with a person. So many things are there.
यू कैन नॉट डील विद कस्टमर्स, विद कस्टमर्स के साथ आप डील नहीं कर सकते। एंड ही डील्स इन शुगर बिजनेस, शुगर बिजनेस में जो है वो काम करता है। तो अलग अलग जो है सेंस के अकॉर्डिंगली हमने लगाए हैं। इन द सेम मैनर वी कैन गैस। अब आप कहेंगे मैडम बहुत सारे वर्ड्स हैं, क्या करें? तो सेंटेंस के जो मीनिंग है वो सेम है, वर्ड्स अलग अलग हैं, उनको हमको उनकी वर्ड्स की सूची बनानी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं। जैसे आप लेंगे वर्ड, यहां पर आपके वर्ड्स हैं सी, फील्ड, भरा हुआ, विद हम प्रपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। इसकी तरह क्राउडेड विद, क्राउडेड भी भीड़ भरी हुई, इन्फेस्टेड विद, थ्रोंग में भीड़, थ्रोंग्ड विद, ओवरवेल्म्ड विद, भाव विभोर होना, इन सब में हम विद लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी प्रपोजिशन जो है मैं लूंगी लाफ्ड एट, हंसना, एट का वर्ड आएगा, एट प्रपोजिशन, और ग्रीन एट, दांत दिखा के हंसना, मॉक एट, खिल्ली उड़ाना, स्माइल एट, स्माइल देना, इन सब की जो सेंस है वो एक ही जा रही है और प्रपोजिशन हमने एट ही लगाई है। ऐसे करके बहुत सारे वर्ड यदि हम करेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अब आपका है जैसे प्रिवेंट फ्रॉम, रोकना, स्टॉप फ्रॉम, रोकना, ये देखिए स्टॉप, यहां पर आपका फ्रॉम आता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम। इस तरह से करके आप यदि एक लिस्ट बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इनको कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बिल्कुल जो आपको याद करने पड़ेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो वर्ड्स आपको आएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज प्लीज डोंट फील कि अरे ये क्या हो गया, प्रैक्टिस से सब चीजें आ जाएंगी और अच्छी तरह से इन्हें करिए, तभी हम अच्छे से इंग्लिश में कर सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको सभी वीडियोस समय पर मिलती रहे, आप अपडेट रहे। सो ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।